Hello everybody, welcome to this channel. I am Dharmendra, Mathematics Mentor. Today we are going to discuss one of type of passage question for 2016 advance, right? This is a question based on ellipse and the parabola. So according to question, let f1 x1 comma 0 and f2 x2 comma 0 for x1 less than 0 and x2 is greater than 0 with the foci of the ellipse. This is a standard ellipse. Suppose a parabola having vertex at the origin, right? At the origin and a focus at f2 intersect the ellipse at point capital M in the first quadrant and point capital N in the fourth quadrant. Then we have to find orthocenter of triangle F1 MN, right? Now for that, first need to draw a diagram here, ellipse, right? Right. This is your XY plane. This is x-axis, y-axis. This is origin, right? Now this is F1 because F1 has x1 less than 0, na? So F1, this foci is F1, this foci is F2. So finding foci now we should have eccentricity. So as we know, E square is equal to 1 minus B square upon A square, that is 1 minus 8 by 9, that is equal to 1 by 9. So we should have E is equal to plus minus 1 by 3, right? So you know foci is plus minus A and plus minus A comma 0. So this is 1 by 3 3. This is 1 comma 0. This is minus 1 comma 0, right? This is F1, this is F2. Now suppose a parabola having vertex at the origin and focus at F2. So this is kind of a standard parabola, like y square is equal to 4x. So here y square is equal to 4ax. A is equal to 1 because focus of parabola is 1 comma 0. So this is our standard parabola. This intersect ellipse at point M and point N. Okay. So डायग्राम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? So now need to find orthocenter of triangle F1 MN, right? So this is F1 MN. Okay. So you know what is orthocenter? It's a point of intersection of altitudes. So for finding orthocenter of triangle F1 MN, we should have at least two altitudes. Equation of two altitudes, right? So this is MN, right? तो आप देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में F1 M और N में मेरा वन ऑफ द अल्टीट्यूड्स दैट इज एक्स एक्सिस व्हिच इक्वेशन इज y इक्वल टू 0. तो मेरे पास तो एक तो मेरा अल्टीट्यूड्स आ गया y इक्वल टू 0. दैट मीन्स उस ऑर्थो सेंटर का जो मेरा y कोऑर्डिनेट होगा ना, y कोऑर्डिनेट क्या 0 होगा. इसमें ऑप्शन में दिख रहा है ना y कोऑर्डिनेट क्या, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0. तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही हट गया यहाँ से, ठीक है. नाउ फाइंड एटलीस्ट वन इक्वेशन ऑफ ऑर्थो अल्टीट्यूड्स. मैंने क्या बोला उसके लिए, तो मुझे पॉइंट एम और एन फाइंड आउट करना होगा. दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड द पैराबोला. सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इज 4x. दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दिस इज 4x अपॉन 8 4x, right, is equal to 1. This get cancelled two times. So from here we have to find values of x, right? This is x square upon 9 plus x by 2 is equal to 1. So from there this is 2x square plus 9x minus 18, that is equal to 0. So from here this is 9x, this is 36. 2x square plus 12x minus 3x minus 18 is equal to 0. So from where we have x equal to, this is 6, this is minus 6, or x equal to 3 by 2. This is not possible because parabola intersect the ellipse at point M or N in first and fourth quadrant. In both the quadrant x coordinate will be positive. So we have
x value be 3/2. Now need to find y. So y square is equal to 4x 4 into 3/2, that is equal to 6. So this is y is equal to plus minus root 6. So guys मेरे पास तो पॉइंट m और n का कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। तो ये पॉइंट क्या है मेरा 3/2 कॉमा रूट 6, और ये पॉइंट क्या होगा 3/2 कॉमा माइनस रूट 6, चलेगा ना, राइट। तो मुझे तो कम से कम एक अल्टीट्यूड और चाहिए, तभी तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे हम। तो या तो पॉइंट एम से अल्टीट्यूड निकालो या पॉइंट एन से। तो हमने क्या बोला, पॉइंट एन से हमने अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना शुरू किया, राइट। उसके लिए जो अल्टीट्यूड एन से पास करेगा ना, मान लो हमने ऐसा कुछ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया पॉइंट एन से, ठीक है, इसका तो मुझे स्लोप चाहिए ना, और ये पिका इसमें परपेंडिकुलर, तो मुझे स्लोप ऑफ f1m तो मालूम है। तो स्लोप ऑफ m ऑफ f1m, स्लोप ऑफ f1m क्या होगा मेरा रूट 6 y2 माइनस y1 अपॉन 3/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/2 2 रूट 6 अपॉन 5। तो बाबूजी मेरे को तो f1m का स्लोप मालूम हो गया, तो ऑफकोर्स उस अल्टीट्यूड का स्लोप मालूम हो गया जो पॉइंट n से पास करेगा। हाँ, तो क्या होगा उसका स्लोप -5/2 √6। नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स passing through n, that is y minus minus plus y plus √6 is equal to -5/2 √6 into x minus 3/2, right? This is equation second. तो मुझे करना क्या है आपसे, क्योंकि मेरे पास तो एक ऑलरेडी इक्वेशन अल्टीट्यूड का मालूम हो गया बहुत इजी वे में, दैट इज y इक्वल टू 0, हाँ ना। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो अपन के पास क्या x कोऑर्डिनेट आएगा, वही तो मेरा रिक्वायर्ड क्या होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। हमने क्या बोला y इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट √6 इज इक्वल टू -5/2 √6 into x minus 3/2. So from here this is 2 into 6 12 is equal to minus 5x minus minus plus, this is 15/2 plus 15/2, right? Now we have to find what x coordinate here. So from here this is 10, this is 24, this is 10x is equal to 15 minus 24, that is equal to, this is minus 10x, this is 10x, this is minus 24, that is equal to minus 9. So x equal to minus 9/10, राइट। तो मेरे पास तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो अल्टीट्यूड का क्या फॉर्म हुआ, x इक्वल टू -9/10 और y इक्वल टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड जो मेरा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -9/10 कॉमा व्हाट 0। हाँ, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, एक्चुअली इसमें करना क्या था, आप ना अगर मेरा राइट हैंड ट्रायंगल होता ना, तो वहां पे अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल कहीं से प्रूफ हो जाता या इस क्वेश्चन में फॉर्म हो जाता, तो हम तो सीधा बोलते भाई ऑर्थो सेंटर वहां फॉर्म होगा जहां पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, उस वर्टेक्स को बोलते। बट अगर नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, भाई मेरे को एटलीस्ट टू इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करना ही पड़ेगा और फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, दिस पैसेज क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट वो क्या है, इफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट पॉइंट m और n meet x axis at r and the normal to the parabola at a meets the x axis at q, then the ratio of area of triangle mqr to the area of quadrilateral mf1 nf2. Now again draw a diagram. So this is our ellipse, right? This is xy plane. Okay, this is origin. तो हमने क्या बोला सर, एक तो पाराबोला है जो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एन पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलेगा ना। इसका कोऑर्डिनेट नॉन हो गया मेरे को, राइट। सो दिस इज f1 -1, 0, दिस इज f2
जो कि मेरा पाराबोला का भी फोकस है, चलेगा। उसने बोला क्या, ठीक है, उसने बोला कि अगर मैं इलिप्स पे द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट पॉइंट एम एंड एन मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करूँ पॉइंट एम पे टू द इलिप्स वह एक्स एक्सिस को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा। सिमिलरली अगर मैं एन पे ड्रॉ करूँ इलिप्स ना, तो थोड़ा डायग्राम तो मुझे एडजस्ट करके ही फॉर्म करना होगा यहाँ पे, ठीक है, चलेगा ना। पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट किया, तो मुझे उसने क्या बोला कि आपको ना दो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट इज एम क्यू आर, एम क्यू आर। फिर क्या बोला उसने, द नॉर्मल टू द पाराबोला एट पॉइंट एम। नाउ अगर मैं पाराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ ना, पाराबोला पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, वह एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज नॉर्मल टू द पाराबोला, दिस इज नॉर्मल टू द पाराबोला। तो आप नॉर्मल कैसे भी ड्रॉ करो ना, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया भाई, ठीक है। इस पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करा है, दैट मींस एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करा है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल एम क्यू आर, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस क्वाड्रिलेटरल, चलेगा ना। नाउ उसके लिए तो मुझे पॉइंट क्यू चाहिए, पॉइंट आर चाहिए, तो मुझे ट्रायंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर, तो ट्रायंगल एम क्यू आर में एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बाबूजी अगर मुझे आर का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया ना, तो तुम्हें बेस मालूम हो गया, क्यू आर लेंथ मालूम हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है मेरा पॉइंट क्यू भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एम, दैट इज 3/2 कॉमा √6, हाँ ना, और पॉइंट एन इज 3/2 कॉमा -√6, हाँ। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट एम, दैट इज इन पॉइंट फॉर्म x1/9 plus y1/8 that is equal to 1. So x1 is 3/2. This is x/9 into 3/2 plus y/8 into √6 that is equal to 1. This is equation third. So guys, this equation intersecting x-axis at point R, that means y coordinate must be 0. So putting y is equal to 0 here, we have this is x/6 is equal to 1. So x equal to 6. तो मुझे ना पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया 6,0, चलेगा ना। तो अब तो मुझे पॉइंट क्यू का भी कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो मैं इसमें बेस का वैल्यू निकालूंगा, क्यू आर जो होगा मेरा। और ट्रायंगल एम क्यू आर में जो मेरा अल्टीट्यूड होगा वो तो पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट होगा, हाँ। फॉर फाइंडिंग पॉइंट क्यू वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, है ना। तो मुझे तो भाई पैराबोला का पहले स्लोप निकालना होगा, तो दिस इज y² 2y डैश इज इक्वल टू 4x, so y dash is equal to 4x upon, oh sorry this is 4 now not 4x, मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, 2y dash is equal to 4, so y dash is equal to 2y, what is y is √6, 2/√6। तो मुझे ना पैराबोला का स्लोप मालूम हो गया एट पॉइंट एम, तो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, उसका स्लोप क्या होगा -6/√2। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point m 3/2 comma √6, so that is y minus y1 √6 है is equal to -6/2 into x minus 3/2, right, चलेगा ना। now this normal intersect the x axis at point q, so y coordinate 0 होगा, so put y is equal to 0। तो मेरे को अपन को क्या मिल रहा है यहाँ से कि 0 minus √6 that is equal to -√6/2 into 2x minus 3/2, so from here we have to find x now, so that implies this is 4 minus 4√6 is equal to -2√6 into x minus plus 3 into √6, चलेगा। तो this is minus 2√6 into x, that is equal to 7√6, this √6 get cancelled, so we have
x इक्वल टू 7/2। हाँ, तो मुझे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया 7/2। तो अपन के पास क्या है कि सर मुझे पॉइंट Q मालूम हो गया 7/2, 0. Now we have to find area of triangle MQR. So area of triangle MQR, that is equal to half into base. Base is, this is 6 minus 7/2 into height. Height is √6. चलेगा ना? तो यहाँ से जो मेरा एरिया आएगा क्या आएगा 1/2. This is 12 minus 7 5/2. So this is 5/4 into √6 square unit. This is area of triangle MQR. 1/2 into base 6 minus 7/2 into height is y coordinate of point M, that is √6. This is 12 minus 7 5/4 √6. Now we have to find area of quadrilateral MF1 NF2 NF2. This is our quadrilateral, right? F2, right? So this is a symmetric diagram. This quadrilateral is divided in two parts, in two triangle, that is called F1 F2N या फिर F1 F2N. दोनों का एरिया, नॉट अलजेब्राइक एरिया, एरिया तो सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज. तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल F1M F2N को हमने क्या लिखा सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल F1M NF2 चलेगा, जो भी है, that is equal to 2 times area of one of the part of triangle, that is F1 M F2. हाँ, F1 M F2. तो मुझे F1 F2 क्या है 1 + 1 2 और पॉइंट M का y कोऑर्डिनेट क्या है √6. तो दोनों केसेस में इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा √6. दिस इज 1 + 1 into √6. This is 1/2. This get cancel here. 1/2 to 2. This is 2√6. Now therefore ratio of area of triangle, what, F1 MQ upon area of quadrilateral F1 M F2N, that is equal to what? This is 5√6/4. 5√6/4 whole upon 2√6. So that is equal to √6 get cancel. This is 5/8, right? So यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल FMQ अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल F1M F2N, that is 5/8. तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे 5:8, that is ऑप्शन सी. तो यहाँ पे करना क्या है आपको, एक्चुअली इसमें डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लूँ ना तो मुझे जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो या फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन डाटाज के साथ फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम केसेस में क्या आता है मेरा एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट किया था हमने, तो मेरा आंसर क्या रहा 5:8. तो गाइज यहाँ पे क्या है ना कि मुझे इलिप्स और पाराबोला का मिक्सिंग क्वेश्चन फॉर्म हुआ यहाँ पे, जहाँ पे मुझे F1 F2 निकाला हमने, फिर इसेंट्रिसिटी निकाला, फिर हम इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकाला F1 M N, जो कि मुझे चाहिए कम से कम 2 इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, राइट? ओके, ऑल राइट. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं.